Hello friends. In this video, we will study Indian economy on the eve of independence from the economics Indian economy. So Indian economic on the eve of on the eve of independence. So it refers to a system between two countries under which one country being the ruler and another being the colony, and ruling country determines the economic policy of colony. So we understand from this definition that one country being the ruler at before the independence of India, the ruler country was the British, and the colonial country was the India. So in this so Indian economy refers that refers that to a system between two countries under which country being the rulers and another being the colony, and ruling country determines the economic policy of colony. This is the definition of this. So next question no, next that stagnant economy means रुकी हुई economy. It refers to the economy which stuck or very slow at its path of development so which is very slow. Before the independence, Indian economy was very slow, and its path of development was neither no a path of development. There is no development in the Indian economy. So Indian economy before we will come on next topic. So Indian economy before the colonial period, agriculture was the main source of employment of around 85% population of India from 100% population of India. The main source of employment, source of money, and a major part of Indian economy was the agriculture. Only those crops were grown that were used for self-consumption. In this we are studying before the colonial period, before the advent of Britishers. So only those crops were grown that are used for self consumption, खुद के लिए, या फॉर विलेज आर्टिसन, या विलेज के मैकेनिक्स के लिए. सो इंडियन इकोनॉमी वॉज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट, हाथ की बुनाई के काम के लिए, वो विच वॉज वेरी फेमस इन वर्ल्ड. इंडियन इकोनॉमी extensive trade in Europe and Asia. Indian export were extensive in Europe and Asia. Enjoy a extensive trade means वहाँ पर लोग ज़्यादा अपनी चीज़ें बनाकर वहाँ पर ज़्यादा जाते थे, एशिया और यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में. दीज आर टू कॉन्टिनेंट एज यू नो. इंडिपेंडेंस सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी. किसी का इस पर रोक टोक नहीं थी ब्रिटिश के आने के पहले, बट ब्रिटिश के आने के बाद दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एंड very slow and stagnant. So next topic is that low level of economic and development under colonial rule. मतलब there is neither at the dawn of independence, when independence we are getting independence, there is no development of Indian economy. So India had an independent economy before independent, and also a prosperous economy बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. ये लिखा है जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि ब्रिटिश रूल में के टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही इंडिपेंडेंट थी. एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. फ्रॉम एग्रीकल्चर वी गेट आवर इनकम. Okay, so famous for handicraft industry in field of not agriculture. We were famous for handicraft industry in field of cotton, silk, metal, and precious stone. Policies of British promote their homeland. As you know, British was a ruling country. In present, Indian government take and make different economic policy for people of India. So at that time Britishers also make some policies for India, but the major demerits of these policies was that
दैट द पॉलिसीज़ प्रमोट देयर होमलैंड, यानी ब्रिटिशर्स के होमलैंड को देयर प्रमोट करती थी, नॉट टू इंडिया। इंडिया को प्रमोट नहीं करती थी वो सारी जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ थी। द पॉलिसी विच वॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म यानी बदल दिया इंडिया को नेट सप्लायर, यानी एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जब अपन कोई भी चीज़ को बोलते हैं तो उसको नेट सप्लाई बोलते हैं। तो नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया, ना कि गुड्स। यहाँ मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल ज़्यादा था दूसरी कंट्री में, वहीं ब्रिटेन में जाता था, वहीं से गुड बन के फिनिश गुड बन के इंडिया में आता था, जिससे कि अपनों को भारी नुकसान होता था और ब्रिटिशर्स को भारी फ़ायदा होता था। यही समझ लीजिए आप यहाँ पर। So we will going to next page. वी के आर वी राव एक इकोनॉमिस्ट थे। एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। सो वी.के.आर.वी. राव इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बताया था, एस्टीमेट करा था कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है इन कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे वो बहुत महत्वपूर्ण थी इंडिया के लिए, दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी की बात नहीं चल रही जब। सो अब अपन आते हैं अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। सो ड्यूरिंग एग्रीकल्चर agrarian 85% ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव ड्यू टू एग्रीकल्चर। मतलब 100% पॉपुलेशन में से जो 85% थी जो कि गांव में रहती थी, जो कि विलेजेस में, दे स्टे इन विलेजेस आर does work like agriculture's work. Okay, they survive, they take food, they earn from the agriculture fields. Okay, but agriculture sector, but although एग्रीकल्चर वॉज 85% पॉपुलेशन डू वर्क इन एग्रीकल्चर, पर तब भी एग्रीकल्चर जो था इंडिया का वो एक स्टैग्नेशन, एक रुकाव था, उसके रिसीव करता था एक रुकाव बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। क्योंकि ज़मींदारों के जो उस टाइम पे ज़मींदार थे, ज़मींदारी सिस्टम था पहले, आपको जैसा कि पता है। तो वहाँ पर के जो उनके रूल्स थे कि इतने टैक्स लगाना, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था वो अच्छा नहीं करते थे लोग, क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो वो क्या करेंगे अच्छा बना के, इसलिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉफिट गोज़ टू, जो मेन प्रॉफिट्स था वो गोज़ टू ज़मींदार। जैसे कि 100 रुपये का अगर फार्मर ने काम करा तो उसमें से कम 95 रुपीज़ तो ज़मींदार को ही चले आते थे, और 5 रुपये में उसे अपना सारा काम करना होता था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, मतलब होता था। बेसिकली ये था कि कॉलोनियल रूल की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर की पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। गवर्नमेंट एंड ज़मींदार, जो गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि उन्हें बचाने का काम करती थी, बल्कि उनको और परेशान करके उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश करा जाता था। गवर्नमेंट एंड ज़मींदार डज़ नथिंग फॉर एग्रीकल्चर। और एक तो ना तो उनको कोई पॉलिसी, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कई सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, जय किसान जय जवान, ऐसे कुछ नारे हैं हमारे पास। तो ऐसी ज़मींदार के लिए कुछ कर ही नहीं जाते थे उस टाइम पे, ना गवर्नमेंट करती थी, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट करते थे, और ना ज़मींदार जो रेंट ले, बस ज़मींदार को उससे रिलेशन था कि बस उन्हें उनका रेंट मिल जाए, उनके पैसे मिल जाएं, बस। दे ओनली कलेक्ट रेंट। और रेवेन्यू सेटलमेंट उसमें करते थे वो। अच्छा, अब आपको बता दूं, रेवेन्यू सेटलमेंट मतलब क्या होता है। रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड बिफोर सर्टेन टाइम। उनकी एक पॉलिसी थी कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो भी अपने को पैसे मिलते हैं बेचने पे या कुछ भी करने पे, कुछ भी चीज़ बेचने पे जो पैसे मिलते हैं उसे रेवेन्यू कहा जाता है, जैसा कि है ना। सो रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड बिफोर सर्टेन टाइम।
depositing specific sums of revenue are fixed. There is no relaxation in the revenue. They are fixed revenue which was collected by the zamindar from the farmers. Okay. और although कितना रेवेन्यू लेना है, कब लेना है, और बिल्कुल फिक्स रहता था, और अगर ये नहीं दे पाते थे तो उन पे और भारी पनिशमेंट दी जाती थी. और देन गवर्नमेंट है ना, दे ओनली कलेक्ट रेंट. जो ज़मींदार और गवर्नमेंट थे सिर्फ रेंट कलेक्ट करते थे. रेवेन्यू सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया. विच ज़मींदार आर टू लूज़ देयर राइट. अगर ज़मींदार अपना उनसे फार्मर से अगर टैक्स नहीं ले पाते थे तो उनको क्या करना होता था, जो राइट रहते हैं वो उनको छोड़ने पड़ते थे. उनके गवर्नमेंट उनसे ले लेती थी राइट. सो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी. जैसे कि आप पता है अब इंडिया बहुत इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी में जाते जा रहा है. इंडिया इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी में जाते जा रहा है. सो बहुत ही मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. सो इंडियन लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी उस टाइम एग्रीकल्चर के पहले. सो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी अपन डिफरेंट प्लोइंग के लिए और डिफरेंट वर्क के लिए एग्रीकल्चर्स के सीड बोने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. बट उस टाइम सब हाथ से काम होता था, जो वो बहुत मुश्किल भी होता था उस टाइम के हिसाब से. और लो इरिगेशन फैसिलिटी भी थी और नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ. अभी जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं वहाँ पर ना तो फर्टिलाइज़र यूज़ होते थे. उपजाऊ करने के लिए जो फर्टिलाइज़र अपन यूज़ करते हैं वो वहाँ उस टाइम पे ना के बराबर थे, समझ लीजिए आप ये. उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर फर्दर सेट बैक ड्यू टू पार्टीशन. अब ये सब तो अपने कारण हो गए, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा कारण यह था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया एग्रीकल्चर में. जब 1947 के टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली और उसके जस्ट बाद इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, जो कि बहुत ही उसी टाइम पे इंडिया का जो बहुत सारा जूट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया शिफ्टेड ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है. अभी दो हिस्से थे पाकिस्तान के, एक वेस्ट पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है. तो जो जूट प्रोडक्शन था इंडिया के में, जो जूट प्रोडक्शन होता था वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चले गया, जिससे कि इंडिया को बहुत सफ़र करना पड़ा उससे. दे सफ़र हैवीली फॉर द लैक ऑफ रॉ मटेरियल. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब यहाँ तक तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया जो जिसकी 12 बजी पड़ी थी उस टाइम पे. जैसे एग्रीकल्चर जैसी वो आए ब्रिटिशर्स. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले आप आएंगे जीडीपी पे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू. अब अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर. अब फाइनल गुड्स यानी जो बना हुआ गुड्स है, और सर्विसेज जो अपन सर्विसेज देते हैं या लेते हैं. प्रोड्यूस यानी बनती है एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर 1 साल में, उसको बोलते हैं अपन. उसका जो रेट निकालते हैं, उसका जो रेशियो निकालते हैं, उसको अपन जीडीपी में कहलाते हैं. और आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है और डिफरेंट चीज़. इंडिया कुड नॉट डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब जितना भी डेवलपमेंट थोड़ा बहुत भी हुआ था वो एग्रीकल्चर में हुआ था, लेकिन जो इंडिया थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़रा सा भी डेवलपमेंट नहीं कर पाई, बहुत कम, ना के बराबर. जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में करा था उसने, वैसा नहीं कर पाई.